फिल्म सिटी नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 9वां डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवाह, चांदशील भारती डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग मारवाह स्टूडियो और मनोज अग्रवाल डायरेक्टर AFT उपस्थित रहे। वहां उपस्थित अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवाह ने कहा, डॉक्टर नायडू का अनुकरणीय नेतृत्व और साहित्यिक कौशल दुनिया भर की महिलाओं को बाधाओं को तोड़ते हुए अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहचान बनाने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस मंच के माध्यम से कामकाजी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संदीप मारवाह पर आधारित एक प्रेरणादायक शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई। स्टूडियो में क्या कुछ करना चाहिए आप इसके बारे में? First of all, I would like to thank Dr. Sanjeev Marwa to give us this award and honoring women like this, and giving the privilege of being empowered. That is being acknowledged here. So I was quite overwhelmed with the response, with the things, and I'm quite happy that how the things are moving here. I've never been to AFT before, but yes, this is very first experience of mine that I've come here, and I really have a wonderful feeling over here to have this award here, because this is not a normal award. Actually, this is they have made us a part of this celebration, not to just ensure that yes, they are honoring us, but yes, we are a part of family of AFT as well, and it was a pleasure being here. Thank you so much. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. Myself Hani Sharma. I stay in Delhi. I'm EVP ibugroup.co.uk. I do the hospitality international placements all over the world, and I'm really thanking Sandeep Marwaji for honoring us with this award and giving tribute to all the students over here who have organized this program. I'm really thankful to all the women present here, and special thanks to Sarojini Naidu ji who has given us this name. Thank you so much. Thank you to the media team, to everyone. Thank you so much. चाहिए इसके बारे में? जी मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात थी और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं मरवाह स्टूडियो और संदीप मरवाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस 7000 एप्लीकेशंस में से एक मेरा एप्लीकेशन चूज़ किया और मेरे जो भी काम है उनको अप्रिशिएट किया। तो थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग वेरी मच मोटिवेटेड एंड ऑन द 7th floor. Thank you. Run a company called Goldfish PR and Communications. It's an honor, very humbling experience to actually have received this award. It's Dr. Sarojini Naidu's international award by AFT, by Mr. Marwa, and it's the 9th edition. I'm feeling very humbled, very honored. So thank you so much, AFT and the team. Thank you. Hello, I'm Siddhi Johari from Jodhpur, Mrs. India International winner and National Brand Ambassador for Women Empowerment. It's really a pleasure to be awarded here today with Sarojini Naidu International Working Women Award 2025 at such a prestigious platform, and I feel completely exhilarated to see what all the creations and the innovative designing by students over here, and I feel completely enthralled to see all the awardees who has come all across from our country. Thank you. Hi everyone, I'm Dr. Ruchi Batra, and it is a great honor to be here at the 9th Sarojini Awards Festival, and I'm really inspired by Dr. Marwa कि उन्होंने एक ऐसा initiative लिया, एक ऐसा platform दिया where working women are being honored for their achievement so that they can go back and inspire others. He really spoke very well about thinking and feeling, and Sarojini Naidu जो कि एक freedom fighter थी, आज की जनरेशन को फ्रीडम चाहिए अपनी एडिक्शन से, अपने डार्क, नेगेटिव, डिजीज्ड, डैमेज्ड थॉट से। सो अगली लड़ाई नेशन को फ्री कराने की नहीं है, अपने विचारों को फ्री कराने की है, ताकि किसी भी तरह की एडिक्शन, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की हो, वेपिंग की हो, स्मोकिंग हो, उससे दूर रहना है, मोटिवेटेड रहना है और इस सिटी को पोल्यूशन फ्री आप लोगों ने ही करना है, because as you can see I am one of the people who's suffering badly from pollution. I keep getting a bad throat, bad eyes. आने वाली जनरेशन से यही उम्मीद है कि हमारी जनरेशन ने जो गलतियाँ करी है इसे पोल्यूशन और करप्शन से आप आज़ाद करें, और वो तब होगा जब आप सिंसियरिटी, कमिटमेंट
और मोटिवेशन से इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। सरोजिनी नायडू अवार्ड से आज आपको सम्मानित किया गया मारवा स्टूडियो में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। और मैं थैंक यू करूँगी संदीप मारवा जी को, इतना अच्छा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया और लेडीज़ को इतना प्रेरणा मिली है आज यहाँ आके। आई थिंक ईच वुमन हु इज़ हियर विल गो बैक एंड टेल द सोसाइटी कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। और स्पेशली मेंटर्स, मैं तो मेंटर ही कहूँगी संदीप मारवा जी को, जो हम लोग के साथ में खड़े हैं और जिन्होंने ये हमें मार्गदर्शन दिया कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं एंड वी आर एट इक्वल शोल्डर टू शोल्डर विथ मैन। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ टू बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इवेंट। आया है क्योंकि इन अवार्ड से हम लोगों को वापस से एक प्रेरणा मिलती है। इट गिव्स एक बूस्ट एनर्जी वंस अगेन एंड एंथुसियाज्म इंस्पायर अस टू डू इवन बेटर व्हाट वी आर डूइंग। हम जो कर रहे हैं वो अवार्ड के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अवार्ड एक बहुत बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है कि और करिए और बड़े अवार्ड्स लीजिए। तब तक मैं उम्मीद करती हूँ मारवा स्टूडियो और बड़ा अवार्ड लेकर आ जाएगा। से धन्यवाद करना चाहूँगी सारी टीम का, एंटायर टीम का, मारवा स्टूडियो का और संदीप सर का, कि इतने थॉटफुली इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया और वो भी इतने अच्छे सरोजिनी नायडू जी के नाम से ये अवार्ड दिया। और उन सारी महिलाओं को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इन्होंने वर्किंग वुमेन इनके सोचा और इनके लिए ये अवार्ड किया और मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं नेचर से बिलोंग करती हूँ, मेरा पैशन प्रकृति है और उन्होंने एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा, इस टॉपिक को भी उन्होंने चुना और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया। सब मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। I thank Dr. Sandeep Marwa for the award। और जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि ये 7,000 लोगों में से 100 लोग चुने गए हैं एंड मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एंड डॉक्टर मारवा की स्पीच तो ऐसी थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए थे और सबको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि और आगे सुनने को क्या है। इतना अच्छा उन्होंने बोला एंड आई थिंक शायद उनकी यही बातें हैं जो उनको इतना आगे लेके गई हैं। Thank you so much. Thank you. Hi everyone, this is Sam Williams, your fashion choreographer and a social activist. Well, it's been a great pleasure to being a part of this great idol who we know as Dr. Sarojini Naidu. So she has been an inspiration for all of us, and thanks to Sandeep Marwa ji and the other colleagues of his who have been doing this event, who got one-to-one well-known personalities gathered over here who have done something or the other good in their life, good in their work and good in the platform, and among them I have been awarded. So it's really happy to see, and there are beautiful collections which I am seeing over here which is been ignored as fashion designing. So all these clothes which has been over here, so tremendous work the kids have done. Kudos to all of y'all and best of luck to all the designers who have been part of this event over here, and it really makes me good, happy. Thank you. देखिए, आगे कदम आगे कदम आगे कदम, मित्रों धरो बलिदान के पथ पर कदम, पथ बंद है पीछे अचल और पीठ पर धक्का प्रबल, मत सोच कर ले फैसला, ले बाहों में उत्साह भर। डॉक्टर सरोजिनी नायडू को आज याद करते हुए हमने 9वां डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन आज यहाँ लॉन्च किया, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हिंदुस्तान, देश भर और दुनिया भर से यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं। जो डॉक्टर सरोजिनी नायडू इस अवार्ड की जो गरिमा है वो हर साल बढ़ती चली जा रही है और शायद यही वजह है कि तकरीबन 7,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें रिसीव होती हैं और उसमें से हम लोग 100 लोगों को सम्मानित करते हैं। हर एक महिला इस वक्त जो यहाँ पर अवार्ड ले रही है वो उसको हासिल करने का हक रखती है, क्योंकि इन तमाम महिलाओं ने बेहतरीन काम किया है देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए और अपने अपने क्षेत्र में एक नया मकाम हासिल किया है और जिसकी वजह से आज मारवा स्टूडियो और हमारी इंटरनेशनल वुमेंस फिल्म फोरम जो है वो उनको सम्मानित कर रही है। मुझे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर आई हुई सभी महिलाएं
एक दूसरे को मिल रही हैं। एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल के ऊपर नेटवर्किंग का जो प्रोग्राम साथ चल रहा है, जिसका ये फ़ायदा लेकर यहाँ से वापस जा रहे हैं। हर आदमी के पास 99 लोगों की एक लिस्ट बनती चली जा रही है साथ में, और जो सिनर्जी पैदा हो रही है, जो अभी तक मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ और आगे अपने काम को बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर वार्तालाप और जो यहाँ सुझाव निकले हैं, वो प्रशंसनीय हैं और उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। सर, इस तरह की जो अवार्ड होते हैं महिलाओं को दिए तो उनको कितना बढ़ावा मिलता है अपने जीवन में आगे और बेहतरीन काम करने के लिए? बहुत ज़्यादा ऐसे अवार्ड नहीं हैं जहाँ पे महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया जाता है। गली कूचे, कॉलोनी और बहुत ज़्यादा स्टेट लेवल तक तो आपको शायद ऐसे अवार्ड मिल जाएंगे, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर ये शायद थोड़े कम हैं। और शायद यही वजह है कि इस अवार्ड को पाने के लिए वो सभी महिलाएं ज़रूर कोशिश करती हैं जिन्होंने वाकई में बहुत सारा काम कर लिया है। इसकी पहली कंडीशन तो ये हमारी होती है कि कम से कम 10 साल उन्होंने अपने प्रोफेशन को, बिज़नेस को, अपने कार्यों को, अपनी संस्थानों को या अपनी संस्थाओं को दिए हुए हैं। उसके बाद ही सिलेक्शन का मोड शुरू होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिसमें IAS, IPS, IRS, डिप्लोमेट, ये सभी लोग हैं जो आज इस अवार्ड के हकदार हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो सोशल वर्क में हैं, एजुकेशन में हैं, मेडिकल में हैं, और उन्होंने अपने प्रोफेशन से भी आगे जाकर और उठकर समाज के लिए बेहतरीन काम किया है। वो हमारे यहाँ एक ज़रूर कैटेगरी होती है, एक ऐसा बेस होता है जिसको लेकर हम लोग इन लोगों को सम्मानित करते हैं। ऐसे अवार्ड जो हैं वो देश की बहुत सारी महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, इंकरेज करते हैं आगे आने के लिए। और पिछले इन 8 सालों में मैंने देखा है कि अगर हम हर साल 6-7 हज़ार एप्लीकेशन में से जब 100 लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं तो कई 100 और महिलाएं आगे बढ़ती हैं, आगे आती हैं और देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं।